हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। Hello guys, today our topic is representation of sets. In the last lecture we discussed about set, objects, well defined objects and element of a set. Today we will discuss about representation of sets, how to write a set. There are two methods. Firstly, roster method. For writing a set, and another name of this method is tabular form. And second method is set builder method. And another name of this method is rule method. So these are two methods to write a set. Firstly, we will discuss about our roster method. How can we write a set using by roster method? In this method, we list all the elements of set. In this method, we list all the elements of a set, separating them by commas. And enclosing them in a curly bracket. इस मेथड में हम क्या करते हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को इस कोमा द्वारा अलग करके करली ब्रैकेट में राइट करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, you know there are 5 vowels A, E, I, O, U. In roster method, we write all the elements of set, separating them by commas and enclosing them in curly brackets. So we have 5 elements and we will write in curly brackets A using by comma A, E, I, O, U. डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके करली ब्रैकेट में कोमा लगा कर आप राइट कर सकते हैं। 2 पॉइंट डियर स्टूडेंट्स में नोट करना। We can write these elements in any order. Mean we can write I, E, O, U and A. O, E, U, I, A. Note this point. We can write these elements in any order. We take another example. Suppose natural numbers which are less than 7. We take natural numbers less than 7. We know these are 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 numbers less than 7. So we write these elements in curly bracket, separating them by comma. So 1, 2,
3 4 5 6। तो इस प्रकार रोस्टर मेथड में हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को कोमा का यूज करके राइट करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। A is a set X such that X is a prime number. X is a prime number less than 11. Firstly, we identify prime numbers, those are less than 11. What are prime numbers? A number which has exactly two factors. Prime numbers, a number which are exactly two factors. So now we find prime numbers less than 11, 2, 3, 5, 7, and 11 is also prime number. But we want to find set of those prime numbers which are less than 11. So only these 4 elements of set A. So dear students, रोस्टर मेथड में आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को आप कोमा यूज करके राइट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल, x is an integer and given condition x is greater than -3 but less than 4. We want to write a set such that where x belongs to z, meaning x is an integer, and also one given condition where x is greater than -3 but less than 4. You know, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These integers are such that greater than -3 but less than 4. So now we will write these elements in curly bracket, -2, -1, 0, 1, 2, 3. तो डियर स्टूडेंट, ये आपका रोस्टर मेथड है जिसमें आप सेट को लिख सकते हैं। इस मेथड की हेल्प से आप सेट को बना सकते हैं। आवर नेक्स्ट मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड, वेरी इजी। In this method, firstly, we identify the special rule, special property of given elements. Firstly, we identify special property, special rule of given elements. After then, we will write in curly bracket. Firstly, we write a variable x. Firstly, we will write one variable x, y, so on. After then, such that what is our special property? What is our special rule of those elements? We will write. For example, A, E, I, O, U. डियर स्टूडेंट, सेट बिल्डर मेथड में आपने क्या करना है, आपने जो भी सेट गिवन होगा उस सेट के एलिमेंट्स में कोई ना कोई स्पेशल रूल जरूर मिलेगा, उनमें कोई ना कोई स्पेशल प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी। वो आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसको यहाँ पर राइट करना है।
For this example, you know these are vowels. A, E, I, O, U. These are vowels. So we will write firstly a variable x. After then we will write special property of these elements. Mean x is a vowel of English alphabet. बहुत इजी मेथड है डियर स्टूडेंट, आपने सिर्फ इसको देखना है अच्छे से। इनमें कोई ना कोई आपको रूल मिलेगा, वही रूल आपने यहां पर राइट करना है। इज दैट क्लियर? वी विल टेक अनदर एग्जांपल। लुक एट वेरी केयरफुली। 2, 5, 8, 11, 14, 17. 4, 9, 14, 19. 3, 5, 7, 9, 11 and 3. These are 3 examples of sets. इन 3 एग्जाम्पल्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड द्वारा राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, इन सभी में 3 का डिफरेंस है, इन सभी में 5 का डिफरेंस है और इन सभी में 2 का डिफरेंस है। सो हाउ कैन वी राइट दीज एलिमेंट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म? Firstly, we will take one variable, suppose that is x. Firstly, we will take one variable that is x, that is x. After then, we will find special property, special rule. इनमें कितने का डिफरेंस था? 3 का. So we will write x is equal to 3n, x is equal to 5n. इनमें डिफरेंस कितना है? 5 और इनमें कितना डिफरेंस है? 2. So we will take x is equal to 2n. n mean n belongs to natural number and natural numbers start from 1. तो यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करके देख लीजिए आप, बहुत ईजी मेथड है। 3 1 जा 3 और हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 2। इसी में रखिए 5 1 जा 5 और हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 4। यहां पर देखिए 2 1 जा 2 और हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 3। फर्स्ट एग्जाम्पल पर दोबारा आइए, n की वैल्यू हमने 1 पुट की है, सो x इज इक्वल टू 3 और हमारे पास क्या है? 2। वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 और हमें चाहिए था 2। इट्स मीन ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। तो इसमें से 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए, सो 3n minus 1. Similarly, we put the value of n is 1. We get 5, but our first term is 4. So we can say 5 is 1 more than 4. So we will subtract 1 from 5. So 5n minus 1. In this example, यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 पुट कीजिए, 2 1 जा 2 और हमारी फर्स्ट टर्म है 3। 1 रखने से बेटा क्या आया? 2 और फर्स्ट टर्म क्या है? 3। तो यहाँ पर कम है ना, हमें चाहिए 3, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, प्लस 1। सो हमने इस प्रकार यहाँ से डिफरेंस बेस पर वो स्पेशल रूल फाइंड आउट कर लिया जिसके अकॉर्डिंग हम ये बना सकते हैं। अब आप सब चेक कर सकते हैं। फर्स्टली हमने 1 पुट किया था, आफ्टर दैट आप 2 पुट कर सकते हो। 3 2 जा 6 -1 5। 3 पुट करें, 3 3 जा
9 - 1 8। तो ये सारे एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो करेंगे। सिमिलरली ये सारे एलिमेंट इसको फॉलो करेंगे और इसमें भी ये सारे एलिमेंट्स इसको फॉलो करेंगे। हेयर n बिलोंग्स टू n मीन n इज ए नेचुरल नंबर एंड हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। So you can write n less than 7. 1 2 3 4 5 6. In this 1 2 3 4, so we can write n belongs to n and n less than 1 2 3 4 mean 5. So n less than 5. Here 1 2 3 4 5 6. So n belongs to n and n less than 7 because there are only 6 numbers in this set. So you can say n less than 7. तो सेट बिल्डर मेथड में या रूल मेथड में आपने करना क्या है, वो रूल को फाइंड आउट करना है। और यदि जो सीक्वेंस इस प्रकार के दी पाए जो सेट के रूप में है, आप डिफरेंस देखिए और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप इनको राइट कर सकते हैं। आफ्टर देन वी विल टेक अनदर एग्जांपल। X is a letter in the word mathematics. Mathematics. इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उसका हम सेट बनाना चाहते हैं। सो वेरी इजी, दीज आर लेटर्स MATHEMATICS. We write these letters separating by comma and enclosing in a curly bracket. Dear students, जब आप ये कौन सा मेथड आएगा हमारा, इसको उल्टा लिखेंगे ना तो कौन सा मेथड होगा, रोस्टर मेथड। मैं अब दोनों का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, या आपको हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे। मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर हैं उन सबको हम यहां पर राइट करेंगे और किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। रोस्टर मेथड में दो बातें हैं, वी कैन राइट एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर एंड सेकंड वी कैन राइट वन एलिमेंट ओनली वन टाइम। एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही राइट कर सकते हैं। MATHE अगेन M, ये रिपीटेड एलिमेंट इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। A भी रिपीटेड है, T भी रिपीट हो चुका है, ICS। दिस इज योर रोस्टर मेथड, दिस इज योर रोस्टर मेथड जो कि हमने इससे पहले किया था अभी। एंड सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, जो स्पेशल रूल है उसको आइडेंटिफाई करके उसको उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें राइट कर देते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 so on. You know these are natural number, so x says that x is a natural number. So this is your set builder method. तो स्टूडेंट्स ये आपके दो मेथड थे किसी सेट को राइट करने के। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सीखा है। देयर आर टू मेथड्स, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सो स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।